अमरदास अमृत शतर गुर मह दियो। गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैठा। मूरत पंच परवान पुरख गुर अर्जुन पिखो नैन। भन मूरत भन मथुरा मूरत सदा थिर। लाए चित सन्मुख रहो। कल जुग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्ट लग बेतर हो। कल जुग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्ट लग बेतर हो। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी ने पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी। आप जी वडभागे हो जो निता प्रति सतगुरां दे हजूर हाजरी भर के अपने जीवन नूं सफला करते हो। सतगुरां ने अपार बख्शिश रहमत की है। अज पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का प्रकाश दिहाड़ा है। सतगुरां दा जो समुचा जीवन है उस जीवन को विचारन का आपां यतन करना है ताकि सतगुरां दे जीवन दे विचों जो सतगुरां ने सानू सिक्ख्यावां दित्तियां हन उन्हां सिक्ख्यावां नूं असीं भी अपने जीवन दे विच लागू कर सकीए। सतगुरां दे जीवन की आरंभता कथा विचार की आरंभता तो पहला सारी संगत फतेह के नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत गुरबाणी अंदर जदों असीं पढ़ते हाँ तो भट्ट साहबाना ने बड़ा सुंदर शब्द वरत्या है। उन्होंने कहा कि भाई ये जिहड़ा संसार है एक समुंदर की लियाई है, समुंदर की लियाई तो इनू तरना बहुत ज़्यादा औखा है। तो उन्होंने नाल ही कह दिता भट्ट मथुरा जी ने उन्होंने कहा कि भाई इस संसार दे विच जे कोई मनुख इस भाव सागर समुंदर तो पार उतरना चाहता है उहदे वास्ते एक बोहित है, बोहित का अर्थ हुंदा है जहाज। उन्होंने कहा जहाज है ते पुछया कौन है जहाज ते भट्ट मथुरा जी ने कहा कि वो जहाज धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी हैं। तो इस जहाज के विच बैठ करके कोई एक नहीं कोई दो नहीं भट्ट मथुरा जी कहते सगल सृष्ट लग बेतरो। कहते जिहड़ा भी इस जहाज के विच चढ़ गया कौन है जहाज धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं कि जिहड़ा भी गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी जो जहाज सतगुरां ने सानू बख्शिश किया है वो जहाज है किहड़ा। साध संगत धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी
ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਰਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਨ ਮੂਰਤ ਭਨ ਮਥਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ ਲਾਏ ਚਿਤ ਸਨਮੁਖ ਰਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਬੇਤਰੋ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੋਹਿਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਬੇਤਰ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। 11 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਤੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਿਸ ਗੇਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੀੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੀੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਭਾਈ ਕੌਣ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪੀੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਹਨ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਿਤਾ ਹੈ ਦੋਹਿਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੋਹਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਹਿਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਚਪਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੀਤਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਦਿਕ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਣਿਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਧੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤਿਆ। ਇੱਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਦੇਵ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਆਦਿ ਕੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਸਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ
ये समुचा जो अमृतसर का स्थान है खरीदया है गुरु रामदास महाराज चौथे पातशाह जी। ये सारा स्थान खरीद करके ते सतगुरां ने 52 तरह के कारीगर इस जगह के उत्ते वसाए सन। ते राम चक रामदासपुर नाम सी। इत्थे फिर साध संगत अमृत सरोवर जिन्हों अमृतसर आपां कहने हैं, इस सरोवर की सतगुरां ने उसारी करवाई है। वो सारी कराउण उपरंत धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ज्योति जोत समा गए। इत्थे मैं एक घटना का जिक्र करा। हुण ज्योति जोत समाउण तो पहला हुण गुरता की दात तां किसी नूं देनी सी ते उस समय साध संगत हमेशा वड्डे सतगुरु गुरु नानक साहब जी तो लै करके ते साध संगत 10वें पातशाह तक ये प्रीख्या होंदी रही। भावें ये गुरता गद्दी की दात उसे नूं मिलनी हुंदी सी जिहदी दात ये झोली च पैनी है। ये तुर दरगाहों लिखी हुई सी, पर साध संगत प्रीख्या जरूर होंदी सी। उस होया कि साध संगत धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी अमृतसर की धरती दे ने ते सतगुरां ने साध संगत वड्डे भराता धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के उन्हां दे पुत्तर दा विआह सी। पुत्तर दा लाहौर की धरती ते आण के सुनिया मिलिया है कि आप जी ने जरूर पहुँचना। हुण संगतां अमृतसर धरती ते गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के दर्शन करने वास्ते दूरों नेड़े आउंदियां ने ते साध संगत सतगुरां ने कहा साडा ते जाना बड़ा औखा है। संगतां दर्शन दीदारियां वास्ते आउंदियां ने, इत्थे काम भी चलदा पिया, असीं ते नहीं जा सकदे। ते साध संगत सब तो पहलों प्रीति चंद नूं पुछया गया, पुत्र लाहौर की धरती ते जाना है, उत्थे तुहाडे भराता दा विआह है, तुहाडे ताया जी दे पुत्र दा, उस विआह दे विच तुसीं शामिल होना है। ते प्रीति चंद ने अगे आख्या है कि महाराज मेरे कोल नहीं जाया जाना, क्योंकि सारा प्रबंध लंगर आदिक माया का धन पदार्थ का जो भी गुरु घर दे विच आउंदी है सेवा, वो सारा प्रबंध मैं सामभदा। ते महाराज सच्चे पातशाह मैं जे चला गया तो यह काम कौन सांभेगा, तो मेरे को नहीं जाया जाना। जवाब दे दिता। बाबा महादेव जी को पूछा गया तो वह पहलों ही सुभाव तो विरकत सन। उन्होंने कह दिता महाराज मेरा तो मन ही नहीं लगता परिवारों के विच, मैं तो अपने सुभाव करके विरकत साधु हाँ, तो मैं किसी परिवार के विच जाके विआह आदिक नहीं देख सकता। हुण साध संगत सब तो छोटे पुत्र गुरु अर्जन देव महाराज की वारी आई है। पुछया है पुत्र तुसीं विआह ते जाना है, तो उत्थे जा करके अपने भराता दे विआह ते जा करके तुसीं हाज़री भरनी है, साडे कोल नहीं जाएगा। जो हुक्म आ करके सिर निभाया है धन गुरु अर्जन देव महाराज ने। ते गुरु रामदास सच्चे पातशाह नाल ही हुक्म किया कि पुत्र जी चले तो हो तुसीं लाहौर की धरती ते, पर याद रखना जिन्ना चिर असीं ना बुलाइए उन्ना चिर आउणा नहीं। लाहौर की धरती ते जा रहे हो, जिन्ना चिर असीं ना बुलाइए उन्ना चिर तुसीं अमृतसर की धरती ते वापस नहीं आउणा। जो हुक्म कह के नमस्कार करके सतगुरु जी चल पे। साध संगत लाहौर पहुँचे, विआह खत्म होया तो उत्थे फिर सिक्खी का प्रचार किया धन गुरु अर्जन देव महाराज। सिक्खी का प्रचार आरंभ किया। कुछ 15 दिन लंघे, 1 महीना लंघिया, 2 महीने लंघे, पर किसी प्रकार का कोई जवाब जिहड़ा आया नहीं। ते साध संगत सिख जदों गुरु कोलों दूर हुंदा है तो वह मन फिर लगता नहीं है जल्दी, क्योंकि सिख ते गुरु की इन्नी प्यार वाली खिच होंदी है कि गुरु सिख तो बिना नहीं रह सकता, तो सिख गुरु तो बिना नहीं। हुण प्रीख्या पई है धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह, तो सतगुरां ने फिर चिट्ठी लिखी है। बड़े गुरमुख प्यारे शब्द हजारे की बाणी पढ़ते हैं साध संगत। माज राग का ये पावन शब्द है रबता का। सतगुरां ने लिखिया है मेरा मन डोचै गुर दर्शन ताई, बिल्ब करे चातरी किन्नी आई, त्रिकण अवतर साथ न आवै, बिल दर्शन संत प्यारे जी। साध संगत चिट्ठी लिखी है, तो ये चिट्ठी अमृतसर की धरती के उत्ते किसी सेवादार के हथ भेजी। तो जदों सेवादार साध संगत अमृतसर पहुँचिया तो सब तो पहलों जिहड़ा भी कोई अमृतसर की धरती से पहुँचता सी वो बाबा प्रीति चंद नूं मिलदा सी, क्योंकि उन्होंने कोल ही सारियां भिटावां आदि
जो भी बाहर आता सी सब तो पहले उन्होंने कोल जमा होया करता सी। ते बाबे प्रीति चंद को पता लगा कि लाहौर तो इदा सेवादार कोई चिट्ठी लैके आया। पुछया भाई की है, तो साध संगत ने कहा कि एक अर्जन देव जी ने चिट्ठी भेजी है, गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह ने देनी। उन्हें क्या लियाओ मैं दे देवांगा। साध संगत वो चिट्ठी अपनी जेब च बाली रख ली। कुछ समा बतीत होया, सतगुरां तक वो चिट्ठी ना पहुँची। फिर साध संगत दूसरी चिट्ठी लिखी है, वो दूसरी चिट्ठी भी साध संगत सतगुरां दे कोल ना पहुँची। समा सीमित है, साध संगत आपां समुच्चा जीवन वाचना है सतगुरां दा। ते साध संगत इस प्रकार 3 चिट्ठियां लगातार लिखियां। वो तिन्ने चिट्ठियां जदों ना पहुँचियां, फिर साध संगत जदों तीसरी चिट्ठी लिखते हैं, 2 ते ना पहुँचियां, तीसरी लिखते हैं। वो सतगुरां नूं हुक्म करके साध संगत गुरु अर्जन देव महाराज भेजते, भाई ये गुरु रामदास महाराज के हत्थ में देनी है चिट्ठी। जदों गुरु रामदास महाराज ने वो चिट्ठी पढ़ी है, तो सतगुरां ने कहा जल्दी तो जल्दी अर्जन देव जी नूं जल्दी तो जल्दी अमृतसर की धरती से बुलाया जाए। तो साध संगत फिर अमृतसर की धरती से बुलाया। तो प्रीति चंद का पाग उजड़िया कि इन्हें फिर 2 चिट्ठियां जिहड़ियां सन अपने कोल रख ली। सतगुरां ने वो भी कढ़ा के पढ़ियां। पढ़न तो उपरंत सतगुरां ने कहा फिर हुण मिलाप की गल भी करो। फिर सतगुरां ने उत्थे लिखिया है पावन बाणी के अंदर, भाग होआ गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर मैं पाया, सेव करी पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो, हाँ भोली जियो घोल घुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो। साध संगत ये फिर चिट्ठियां लिखियां। हुण गुरता की दात धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह नूं मिल गई है। ते धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ज्योति जो समा गए ने। ते साध संगत साडा इतिहास लिखता है जदों सतगुरां नूं पग बन्नणी सी। हुण साध संगत गुरियाई की पग सी, 2 पग्गां आईयां, एक बेदियां वालों आई तो एक त्रेणा वालों आई। बेदी धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी जिन्नी कुल सी उन्हां वालों एक पग आई सी, एक त्रेण कुल जो धन गुरु अंगद देव महाराज की कुल सी। ये 2 पग्गां आईयां साध संगत धन गुरु अर्जन देव महाराज के सिर ते बन्नण। ते प्रीति चंद लड़ पिया, इन्हें लड़ के एक पग खोह लई ते अपने सिर ते बन लई। तो साडा इतिहास लिखता है, उन्होंने लिखिया कहते मरने की पग प्रति बधी, तो गुरियाई की पग अर्जन लधी। लधी शब्द वरतिया, लधी का अर्थ लभी मिल जानी। कहते प्रीति चंद ने वो पग अपने सिर ते बधी है, पर धन गुरु अर्जन देव महाराज ने सच्चे पातशाह ने यह पग लभी है गुरियाई की जिहड़ी इन्हां दे सिर ते। साध संगत तो पगड़ी बन लई। हुण साध संगत प्रीति चंद कहता मैं भी गुरु हाँ। इन्हें गुरु घर दे विच जिन्ना भी साध संगत धन पदार्थ आउंदा सी ते साध संगत तो सारा अपने को रखना आरंभ कर दिता। भाई गुरदास जी उस समय आगरा की धरती से जदों उन्होंने पता लगा कि गुरु घर के लंगर मस्ताने हो गए, किसी प्रकार का कोई राशन आदि नहीं पहुँचता, तो सतगुरां दे लंगर जिहड़े मस्ताने हो गए, संगत बड़ी व्याकुल है। फिर भाई गुरदास जी ते बाबा बुढ़ा जी ने मिल के, भाई गुरदास जी आगरे तो आए, उन्होंने मिल करके सिख संगत को समझाया भाई गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी असली गुरु हैं। इन्हां दे अगे जिहड़ा सिख निवेगा उन्होंने ही गुरियाई की दात, उन्होंने ही साध संगत वडियाई प्राप्त होए। साध संगत सारी संगत फिर गुरु अर्जन देव महाराज के कोल झुकण लग पई। दूरों नेड़ियों संगत आउंदी। प्रीति चंद के नाल कुछ ही बंदे सन, पर सब तो वध फिर उसे प्रकार रौनकां गुरु घर दे विच लग गईयां। तो इतों तक भाई गुरदास जी ने लिखा है अपनी वार के अंदर कि गुरु अर्जन देव महाराज के समय के विच पंजाबे गुर की वडियाई। कहते पंजाब के विच धन गुरु अर्जन देव महाराज की इन्नी वडियाई हो गई, जिन्ने भी सखी सबर सन, भाव जिहड़े कबरां नूं मनण वाले सन, वो सारे के सारे धन गुरु अर्जन देव महाराज के सिख बन गए। भाई सालो साध संगत वड्डे तो वड्डे सिख जिन्ने भी सन वो सतगुरां दे हजूर आ गए। तो साध संगत भाई मंझ वर्गे सिख सतगुरां दे हजूर आके मिले। उन्होंने सिक्खी नूं 4 चंद ला दिते। रहो साध संगत विचार समा इसे प्रकार बतीत होया है। तो साध संगत हुण दूसरा समा आया।
सब तो वड्डा जिहड़ा जहाज महाराज ने सानू दिता है धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज। तो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी की जिहड़ी बाणी है साध संगत, इस बाणी नूं लिखण का कारज ही बड़ा विलक्षण है, क्योंकि उस समय साडा इतिहास लिखता है कि बाबा मेहरबान जो प्रीति चंद का पुत्र है, इन्हें साध संगत संस्कृत गुरमुखी आदि किन्नियां बाणियां आजाद सन, इन्हें गुरु नानक नाम की मोहर ला करके बाणियां जिहड़ी सी बाणी आदि लिखनी आरंभ कर दी। तो साध संगत साडा इतिहास लिखता है, मेहरबान पुत प्रथिए का कविश्री करे, गुरमुखी संस्कृति नाले फारसी पढ़े, तिन भी बाणी अधिक बनाई, भोग गुरु नानक दे पाई। इन्हें भी अपनी बड़ी बाणी बनाई तो गुरु नानक साहब जी का नाम वर्त करके इन्हें साध संगत मोहर ला के, तो हुण सिखां नूं पता ना लगे कि गुरबाणी किहड़ी धन गुरु नानक साहब जी की है, किहड़ी गुरु अंगद देव गुरु अमरदास गुरु अर्जन देव जी की बाणी किहड़ी है, ना पता लगे संगतां नूं। एक दिन साध संगत सिख अमृत वेले कीर्तन करते, कीर्तन करदिया करदिया सिखा ने कच्ची बाणी जो मेहरबान ने रची सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ शब्द पढ़ दिए। ਜਦੋਂ ਉਹ शब्द पढ़े तो धन गुरु अर्जन देव महाराज ने फिर भाई गुरदास जी ਨੂੰ बुलाया। उन्होंने कहा मीने पाउण लगे ने रला, रला ना विच करिए कि भाई गुरदास जी हुण ते मीने रला पाउण लगे गुरबाणी दे विच, हुण इहदे विच आपां रला नहीं कोई पाउणा, ते हुण आपां गुरबाणी नूं जिहड़ा है वो एक वधिया ढंग दे नाल लिख के सिखां वास्ते एक पावन ग्रंथ की तैयारी करी। सतगुरां ने स्थान चुनिया रामसर का। इस स्थान पर बैठ करके जो पोथियां सन धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की बाणी, गुरु अंगद देव महाराज जी की बाणी, गुरु अमरदास महाराज की बाणी, ये सारी बाणी बाबा मोहन जी पास साध संगत गोइंदवाल साहब पईयां सन। बड़े सत्कार के नाल आप पैदल चल के नंगे पैरी, क्योंकि पहलों आप जी ने पहलों भी कथा सरवण की होगी, मैं समा विचार रहा इस करके। साध संगत पहलों भाई गुरदास जी गए, बाबा बुढ़ा जी गए, उन्होंने जा करके मंग की है, पर बाबा मोहन जी ने पोथियां नहीं दी। फिर बड़े सत्कार नाल धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी गए, जा करके दरवाजे ते बैठ करके कीर्तन करना आरंभ किया। बाबा मोहन जी आए, नमस्कार की है, उन्हें कहा आओ पुरखो किधर आना आया, तो धन गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा मामा जी असीं पोथियां लैण वास्ते आए, वड्डे सतगुरां दी बाणी। बड़े सत्कार नाल एक रथ जिहड़ा सी अज भी गोइंदवाल साहब की धरती ते रथ पिया है, उस रथ दे विच पोथियां सत्कार नाल रख के नंगे पैरी साध संगत सतगुरु जी पोथियां अमृतसर गुरु रामदास वाहिगुरू रामसर की धरती से लै करके आए। इत्थे फिर साध संगत पावन बाणी नूं लिखण का जिहड़ा कारज सी आरंभ होया। 1601 ईस्वी तो आरंभ हो करके 1604 ईस्वी तक लगातार धन गुरु ग्रंथ साहब जी नूं आदि बीड़ कहा जाता है। उस पावन बीड़ का साध संगत संपूर्ण गुरबाणी सतगुरां ने लिखाई। उपरंत फिर बाबा बुढ़ा जी नूं ग्रंथी थाप करके तो श्री हरमंदर साहब के अंदर पहला प्रकाश धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का किया गया। तो साध संगत उस समय फिर मुख वाक आया सी, संतां के कार जाप खलोआ, हर कम करावन आया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा बिच अमृत जल छाया। ये पावन साध संगत गुरबाणी का जिहड़ा खजाना है धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने सानू बख्शिश किया। अज भी इस बाणी द्वारा ही असीं साध संगत अपने जीवन को सवारते हैं। जे किते साध संगत उस समय रला पै जांदा ते सानू ते पता ही नहीं सी लगना गुरु साहिबान की बाणी किहड़ी है। पर सतगुरां की इन्नी वडियाई, सतगुरां ने साडे उत्ते किरपा की, ये पावन बाणी की दात साडी झोली अंदर पाई। तो साध संगत उस समय बड़ा विरोध होया। कान्हा छज्जू पीलू आदि जिन्ने भी कवि सन उस समय ने, इन्होंने आण के कहा साडी भी बाणी रचो। गुरु अर्जन देव महाराज कहते चलो फिर सुनाओ खा तुहाडी बाणी किदां दी। एक ने कहा कहता मैं ओही रे मैं ओही, कहता बड़ा कुछ देख लिया पर मैं ओही हाँ। तो सतगुरां ने कहा साडे घर दे विच रोज़ बदलण दी गल है, रोज़ ही अपने दिल को अपने अंदर नूं वाचना है। तुहाडी बाणी इस गुरबाणी दे विच दर्ज नहीं हो सकती, क्योंकि साडे घर दे विच ये रीत है बंदे खोज दिल हर रोज़
ना फिर परेशानी माए ते तू तो गल करदा पिया मैं वही रे वही, इस तरह गल नहीं बन। एक नूं कहा तू सुना, उन्हें कहा कालपूत की, उन्हें कहा जी कागज़ की औरत होवे उहदे उत्ते विश्वास नहीं करना चाहिए। तो सतगुरां ने कहा साडा घर तो आवाज़ दिंदा है कि इस घर के अंदरों ये आवाज़ आउंदी है कि सो क्यों मंदा आके जिद जम्मै राजान, तू तो कहना कागज़ की औरत ते विश्वास नहीं करना, असीं ते औरत नूं भी मान सत्कार दिंदे। साध संगत इन्हां ने रल करके फिर उस तो बाद और जिन्ने भी सतगुरु के विरोधी सन उन्होंने जहांगीर के कन भरे। आने वाले समय के सतगुरां का शहीदी दिहाड़ा आना है आ मई महीने के वो आपकी समुचा इतिहास जोड़ा सरवण करोगे तो दास रूप मात्र आप जी को बेनती करेगा। इन्होंने जा करके साध संगत जहांगीर आदि कन भरे सब ने। फिर सतगुरां की जिहड़ी शहादत हुई, पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी बड़े दूर अंदेसी सन। धन गुरु अर्जन देव महाराज सतगुरां ने शहादत तो पहलों अमृतसर सरोवर के धन हरमंदर साहब की नींह रख करके श्री हरमंदर साहब की उसारी करवा दी। सिखां नूं अपना एक केंद्रीय स्थान मिल गया सी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही धन गुरु अर्जन देव महाराज ने तरन ताਰਨ साहब जिहड़ा साध संगत सरोवर है उस जगह के उत्ते साध संगत सतगुरां ने एक दवाखाना खोलिया तो कोड़ियां का कोड़ नाश कर दिता। उस जगह के उत्ते सतगुरां ने तरन ताਰਨ सरोवर की उसारी कराई। साध संगत उस जगह के उत्ते अज भी लोग इशनान करके अपने जिहड़ा साध संगत किसी को सरीरक रोग हुंदा है वो राजी हुंदे हैं। सतगुरां ने उस जगह उसारी कराई क्यों? क्योंकि साध संगत उस समय सखी सरवर जिहड़े सन, जिहड़े साध संगत उस समय पीरां आदि नूं मनण वाले कबरां नूं मनण वाले लोग सन, उन्हां दा बड़ा प्रभाव सी माझे की धरती ते। गुरु अर्जन देव महाराज ने केंद्रीय स्थान तरन ताਰਨ साहब की धरती नूं बना करके जिन्ने भी सगी सरवर सन इन्हां दे उत्ते ऐसी चोट मारी, वड्डे वड्डे चौधरी सतगुरां दे हजूर चो करके उन्होंने सिक्खी की दात प्राप्त की। भाई मझ वर्गिया ने रौ विचार सतगुरां ने करतारपुर साहब साध संगत इस स्थान को वसाया ताकि दुआबे दे विच सिक्खी का प्रचार हो सके। इस जगह के उत्ते सतगुरां ने साध संगत सिखां दे विच प्रचार करने वास्ते इस स्थान नूं जिहड़ा सी वो साध संगत निवाजिया। उपरंत सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने साध संगत छेहाटा जिन्हों आप कहने उस जगह के उत्ते साध संगत छेहाटा वाला खूह लवाया। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के प्रकाश की खुशी के विच उस जगह को अपना केंद्रीय स्थान बना के धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सिੱਖੀ का प्रचार किया। इस जगह के उत्ते दूर दरेडियों संगत आके सतगुरां दे हजूर नाम बाणी के नाल जुड़ती सी। सतगुरां ने साध संगत सानू ना बड़ा सुंदर उपदेश दिता है अपने जीवन के विचों। असीं कई बारी पता की करते हैं कि साडा गवांढी भावें भुखा मरदा होवे पर फिर भी असीं ना गुरु घर दे विच कह लो जां किते भावें उदां ही वध तो वध माया चढ़ती होवे उस स्थान ते जाके वध माया चढ़ाउंदे हैं, पर असीं ये नहीं देखते कि साडे गवांढी दे कोल कोई धन पदार्थ नहीं उहदी मदद करदी। पर गुरु अर्जन देव महाराज ने साध संगत जे गुरु अर्जन देव महाराज जी उस समय हरमंदर साहब की उसारी करवा रहे सन, पता लगा है सतगुरां ने कि लाहौर दे विच खाल पै गया, लोग भुखे मरदे पे। सतगुरां ने सिख संगत नूं कह दिता भाई हुण एक भी पैसा हरमंदर साहब के उत्ते नहीं लगेगा। महाराज फिर पैसा कित्थे लाया जाए? सतगुरां ने कहा जिन्ना भी धन पदार्थ है वो सारे का सारा लाहौर पहुँचाया जाए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप माता गंगा जी जो पत्नी हैं धन गुरु अर्जन देव महाराज सतगुरां दे नाल जा गए सन साध संगत लाहौर। इस जगह के उत्ते सतगुरां ने साध संगत जिन्ने भी लोग भुख के नाल मरदे पे सन उन्हां वास्ते लंगर का आरंभ किया। लंगर का आरंभ करने नाल एक मार तो सारी उस जगह के उत्ते जिन्ने भी लोग भुख नाल मरदे सन उन्हां दा इलाज आरंभ किया। ये सतगुरां की वडियाई है। मर ने कहा जी इमारतां उसारनियां वेले समय उसारांगे पर इस समय लाहौर दे विच सानूं लोड़ है तो दसवंध उत्थे भेजा जाए। ये सतगुरां ने सानूं अपने दसवंध नूं वरतन की रीत भी सिखाई कि भाई किवें अपना दसवंध आदि वरतना चाहिए। मैं एक घटना का जिक्र करके समाप्ति वाला वा। एक बारी साध संगत सतगुरां दे हजूर संगत दर्शन करने वास्ते आई। सेवा साडे अंदर सेवा की भावना कैसी होनी चाहिए। संगत दर्शन करने वास्ते आई है। धन गुरु अर्जन देव महाराज नवीं संगत है साध संगत
बड़ी दूरों चल के आई, उन्होंने गुरु अर्जन देव महाराज के दर्शन नहीं सन किए। सतगुरां दे हजूर अमृतसर की धरती पर आए तो एक जगह के उत्ते उन्होंने जोड़े आदि को उतारे ने, तो जोड़े उतारन उपरंत अंदर चले गए तो जाके आराम किया। बाबा बुढ़ा जी आदि जिन्ने मोहतबार सिख सन, उन्होंने कहा भाई आप जी आराम करो, सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज तुहानूं अमृत वेले दर्शन देने। तो सारी रात धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ते माता गंगा जी सारी रात उन्होंने सिखां दे पहले जोड़े झाड़े। फिर वो जिहड़े सिख दूरों चल के आए सन, उन्होंने साध संगत लत्तां नूं उन्हां दे पैरां नूं घुट्टिया ते तेल की मालिश की। सारी रात बतीत हो गई तो साध संगत तो सिख कहण बड़े प्यारे सिख है गुरु दे, दोवें जी लगे साडी सेवा दे विच, बड़ी इन्हां दी धन कमाई। तो साध संगत रात बतीत होई है, अमृत वेला होया। हुण सिख दर्शन करन वास्ते जदों गए तो दर्शन करन वास्ते जदों पहुँचते गुरु अर्जन देव महाराज के सामने नमस्कार करके देखते, कहते ये तो उही पुरख है जिन्हें रात साडी सेवा की, साडे जोड़े आदि झाड़े, साडे पैर आदि घुट्टे हैं, ये तो उही धन गुरु अर्जन देव महाराज। सतगुरां की इन्नी वडियाई है साध संगत, सिख संगत का इन्ना मान गुरु अर्जन देव महाराज रखते हैं। जदों प्रीति चंद कहता है ना कि चुबारे की इट तुसीं भोरी नूं ला के आए हो, तो गुरु अर्जन देव महाराज ने जो इस गल का पता लगता है तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते गुरु 20 विसवे तो संगत 21 विसवे। सतगुरां ने कहा सिख संगत का मैं कहा नहीं मोड़ सकता, तो सिखां दे कहण उत्ते लाहौर के सिखां ने चिट्ठी भेजी सी, महाराज ने सिखां दे कहण उत्ते संगत के कहण उत्ते धन गुरु अर्जन देव महाराज ने प्रीति चंद की लड़की का रिश्ता मोड़ दिता। सतगुरां ने कहा जे संगत कहेगी जे उन्हें साडे गुरु घर का अपमान किया है, सानू मोरी की इट किया है, तो सतगुरु सच्चे पातशाह कहते फिर सिखां दे कहण उत्ते असीं इहदी लड़की का जिहड़ा सी रिश्ता नहीं लवांगे। इसे करके साध संगत फिर गल वधी। उपरंत फिर धन गुरु अर्जन देव महाराज की शहादत लाहौर विखे हुई। सतगुरां दा प्रकाश दिहाड़ा साध संगत सारी संगत बड़े प्यार के अदब के नाल अज मना रही है। सतगुरु जी रहमत करन सानू भी सतगुरां दे जीवन दे विचों कुछ ना कुछ सीखण नूं मिले, सतगुरां दी वडियाइयां अपने मन दे विच धारीए। सब तो वड्डी गल जो सतगुरां ने एक बोहित जो जहाज दिता है, जो साध संगत भट्टा ने कहा एक जहाज है गुरु अर्जन देव महाराज, ते साध संगत अज भी साडे विच मौजूद हैं, किते चले थोड़ी गए। गुरु अर्जन देव महाराज अज भी गुरबाणी रूप के विच जहाज बन के खड़े हैं, पर साडा मन साफ होवे इस जहाज के चढ़न वाले बणीए। किते प्यार पै जाए गुरबाणी नाल, किते प्यार पै जाए कथा कीर्तन के नाल, साध संगत इस जहाज के उत्ते सवार हो जाइए तो साडा भी जीवन धन हो जाएगा। सो सतगुरु रहमत करन पावन उपदेश हृदय विच वसे। होइयां बेअंत भुल्लां चुकां दी खिमा। समाप्ति है जी। गला फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।